Very good. You have to use telescopic in this, right? What we can do, obviously this is not telescopic. So for making this telescopic, I have to multiply this n plus 2. Now I can see this. This is n plus 2 the whole square upon n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. The complete sequence is there. But the problem is this n plus 2 the whole square. Rather than if it would be other than this n plus 2 whole square, this n or n plus 3, and 100% will be able to do that, but obviously I'm not getting it. So this is n square plus 4n plus 3 plus 1. I'm writing this n plus 2 the whole square, right, as it's not many way to solve these type of questions. इतनी बड़ी बात होती नहीं है, but कितने इंटेलिजेंट तरीके से आप सॉल्व करते हो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. So for the first function, right, this is n, right, we can rewrite this n square plus 4n plus this as, first I'm writing this as n square plus 3n plus n plus 3 plus 1 upon n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Right, now I'm able to solve few questions. For first one, the question is n is equal to 1 to 100, right? This is 1 upon n plus 1, n plus 2 plus n is equal to 1 to 100, 1 upon n, n plus 1, n plus 2 plus n is equal to 1 to 100, 1 upon n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Right? Are you getting this? Okay, now one by one, I have to solve this. I know that this is a perfect form of telescopic. What we are getting, this is 1 upon 2 into 3 plus 3 into 4 up to 1 upon 101 into 102. Right? So this is the answer, 1 upon 1, 1 upon n plus 2 minus 1 upon n plus 1, like the greatest term and the lowest term. The greatest term of this is 102 and lowest is 2. So this is the answer for first one, right? Similarly, for second one, directly we can write the answer. See this one. This 1 upon, Yes, sir. 1 upon first two terms means 1 into 2 minus last two terms means 100, 101 into 102. Directly I can write the answer, right? The third one also I am able to write in directly, right? कैसे लिखूंगा? See, this I can write 1 upon 4, 1 upon 1 into 2 into 3 minus 1 upon 101, 102, 103. All the three terms answers are there. If you want to write, you can write. It's not a big deal, but a beautiful arrangement of the number. Please. Yes, Yani, what you want to ask?
So can you explain the last step before the numerical part? Like this one upon how I'm writing the direct answer. नहीं सर, जो आपने जो 3 समेशन में आपने लिखा है वो वाला स्टेप। वो तो ये दिस इज द इंस्टिंक्ट नॉट द फॉर्मूला। मेरे को क्या करना है कि सीक्वेंस को बिना ब्रेक किए हुए आई हैव टू राइट इट डाउन सच एज कि आई कैन कैंसल आउट n and n+3, यस राइट? सर। n+3 और n। तो व्हाट आई एम डूइंग कि मैंने पहले n² + 4n पहले एक ब्रेक किया, फिर उसको फिर छोटे छोटे में ब्रेक किया, तो n² + 3n लेने पर क्या हुआ कि n and n+3 कैंसिल होगा, राइट? फिर एक को n+3 बना दिया, n1 बना दिया, तीनों को अलग अलग किया। ध्यान से देखो, ऑल द टेलीस्कोपिक सीरीज याद है। अगर यस जो है रनिंग में चल रहा हो, मतलब n+1 n+2 ऐसा चल रहा हो, तो 100% ये एक टेलीस्कोपिक होगा एंड डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन द आंसर, ओके सर। राइट? इसी तो यस श्योर ना यस सर। मानस? यस मानस सर। सर हाथ ऊपर कर लो मानस। हाँ, हैंड सर। यस सर सर एक प्लीज आप मेरे लिए कैलकुलेशन कर सकते हो प्लीज? बस आपके लिए कैलकुलेशन कर लूंगा, कर रहा हूँ मैं। 2 × 3 6, 4 × सर 3। सर अच्छा, कुछ अच्छा, यू वांट टू गिव समथिंग? ओह शिट। हाँ नहीं सर, मतलब क्वेश्चन टाइप नहीं है सर। एक सर सबमिशन ऑफ 1/n+3 इंटू n+1। n+3 इंटू n+1 सर, इसका टेलीस्कोपिक बन सकता है क्या? नहीं होता। ऐसा करता हूँ ना, लिख के देखते हैं। n = 1 to 100 रखने चलेगा? हाँ सर। 1 रखा तो 1/2 इंटू 4 आ जाएगा, राइट? 2 × 4, 2 रखा तो 3 × 5 आ गया, राइट? 1/3 रखा तो 4 × 6 आ गया। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए जो नंबर्स आजू बाजू होने चाहिए, दिस नॉट देयर। So this is not telescopic, but we can convert this into telescopic by multiplying the number n+2. मैंने n+2 multiply कर दिया, right? So my question is, so this is wrong, right? ये गड़बड़ हो गया मेरे से, right? So this is wrong, right? So this is now n+2 upon, अब ये दो टेलीस्कोपिक कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। n+3 से पहला कैंसिल होकर दूसरे वाले उधर से चला जाएगा, ठीक है? यस सर, क्योंकि सर एक्चुअली मैंने n+2 को मैंने मतलब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने n+n+3 माइनस n+1 से किया था। तो 3 टर्म्स बने थे और 2 टर्म्स का वो टेलीस्कोपिक बन रहा था, लेकिन इस टर्म का नहीं बन रहा था सर, इसीलिए पूछा। ओके, सेंड मी द सेकंड क्वेश्चन ना, ठीक? थैंक यू सर।
Okay, ये question, right? So now how you are going to just do this question में क्या होना चाहिए? Anyone? इसके साथ में क्या given था? What was given? What you have to find? This is AK. Summation up to n terms, sir. Summation of 2n terms is नहीं less नहीं sir, n terms, n terms. summation of n terms k is equal to 2 to Yes. 2 to n is less than something दिया हुआ था कि what will be the greatest value. देखें, everyone try this. नहीं नहीं सर, ये वाला टिल n टर्म्स ही था समेशन. एक और नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने पूछा था कि ये ग्रेटर देन 2000 था सर, 2018 या फिर 19 था. वो 1/√3 प्लस ऐसा एक सीरीज दिया था सर आपने दूसरा. हाँ, anyone? किसी का भी कुछ आइडिया लगा? ओके, सर तीनों कॉन्सेक्यूटिव हैं सर. और कोई नहीं बेटा, और सब लोग ट्राई कर रहे हैं, एक बार ट्राई कर लें तो. डन. ये मैं थोड़ा सा इसको और ये कर देता हूँ. लेस देन ये आपको मतलब वर्किंग करना पड़ेगा. एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है? A1 plus A2 up to A999 less than 50. Prove this. Okay? Okay? यस सर. हाँ आया. बोला सबकी बोलती बंद कर दी मैंने एक क्वेश्चन पे.
थोड़ा इंटेलिजेंट अप्रोच ना। See how this can work, right? ध्यान से this a k, I can write this as this is less than k upon k minus 1 to the power 4 by 3 plus k minus 1 to the power 2 by 3 k plus 1 to the power 2 by 3 plus k plus 1 to the power 4 by 3. Is it okay? मैंने ये क्वांटिटी जो है ये अपने तरफ से लिख डाली इन प्लेस ऑफ दिस. Is it okay? So that's the reason I'm writing this is less than. Equality हटा के मैंने less than कर दिया. This is the hint, right? अब ये hint देने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ now try this again. फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, right? A k less than k upon just जो क्वांटिटी मेरे पास k to the power 10 था इसको मैंने ये लिख डाला. ओके सुनीता, यस. सर आपने वो क्वांटिटी क्यों डाली, मतलब अब ये तो सोचने की बात है कि यही क्वांटिटी क्यों डाली. टेक योर टाइम, थिंक. मैं जगह पर बहुत सारी चीजें लिख सकता था, तो क्यों मैंने दोनों के पावर 2/3 करते हुए लिखा. ऑब्वियसली कि ये क्या आ जाएगा, जो क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है k माइनस 1, ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2/3, राइट. वो k से मतलब k टू द पावर 4/3 से तो बड़ा ही होना चाहिए. नीचे की क्वांटिटी अगर बड़ी हो गई तो ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो स्मॉल हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इससे ग्रेटर देन लिख दिया. ओके सर.
लुक, ध्यान देना, कोई आप में सर से एक मिनट सर एक मिनट। प्रितेन तो छा गया। प्रितेन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सी, ध्यान से देखना सभी लोग, वैसे प्रितेन ने ये क्रैक मार डाला, बट ध्यान से देखो, ये जो पूरे हमारे पास रिटर्न है, इसे अगर मैंने k प्लस 1 टू द पावर 2/3 माइनस k माइनस 1 टू द पावर 2/3 से ऊपर एंड ऑब्वियसली नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, k प्लस 1 टू द पावर 2/3 माइनस k माइनस 1 टू द पावर 2/3, क्या क्या फायदा होगा? व्हाट यू विल गेट, राइट? k less than k times k plus 1 to the power 2/3 minus k minus 1 to the power 2/3, ये गया अपॉन, नीचे क्या आएगा? k प्लस 1 स्क्वायर माइनस k माइनस 1 स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस स्क्वायर, मतलब k प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस k माइनस 1 द होल स्क्वायर। इज इट ओके? यस सर। राइट, तो a k इज लेस देन, ये दिस इज 2k 2k 4k आ जाएगा, कैंसिल हुआ, 1/4 बाहर आ गया। अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो दिस इज नथिंग बट टेलीस्कोपिक। यस सर। स्टार्ट फ्रॉम 2 ना, करना 1 से स्टार्ट करना था, राइट? k की वैल्यू पहले मैंने 1 डाल दी, राइट? 1 1/4 बाहर है, 1 डाल दी, 2 डाल दी, 3 डाल दी, कुछ ऐसा जाना शुरू हो गया। क्या ये टेलीस्कोपिक है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये टेलीस्कोपिक है? राइट, सो वो फर्स्ट स्टेप से नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट आपको सेकंड स्टेप से दिखाई दे रहा होगा। 5 डाल दिया तो 5 प्लस 1 6 टू द पावर 2/3, 5 4 डाला, दिस इज 5 एंड दिस इज 3 टू द पावर 2/3, राइट?
तो अगर ध्यान से देखो तो ये कैंसिल हो ही गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गए ये दो टर्म। लास्ट के टर्म्स में वैसे ही मैं कैंसिल करता ही जाऊंगा। लास्ट में मेरे पास क्या आ रहे होंगे, 999, राइट। पुट करके देखो क्या आता है। यस, वेरी गुड। अब जो भी रहा कि जहाँ से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट है या जो भी रहा, 100% यू डिड दिस। इज इट ओके एवरीवन? समझ में आई बात? इसको आप अगर चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आपको एकदम परफेक्ट टेलीस्कोपिक चाहिए और यह इस तरह का नंबर आके रुक गया, और लेकिन आपको ये दिख रहा है कि 2 टर्म के बाद जाएगा या 1 टर्म के बाद जाएगा, राइट। तो अगर ऐसा कुछ है तो व्हाट यू कैन डू, देखना ध्यान से। एक अच्छा तरीका, ये आगे के लिए कहीं काम आएगा आपको। इसे और अच्छे से टेलीस्कोपिक देखने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट डाउन दिस एज k plus 1 to the power 2 by 3 plus k to the power 2 by 3 minus k to the power 2 by 3 plus k minus 1 to the power 2 by 3। आप या तो ऐसे ले सकते हो, तो ये दोनों टर्म के साथ में ये दोनों टर्म बन रहा है, या फिर और अच्छी बात ये हो सकती, ये फर्स्ट तरीका, या सेकंड ऐसा भी हो सकता था k plus 1 to the power 2 by 3 minus k to the power 2 by 3 minus, right, k minus 1 to the power 2 by 3 minus k to the power 2 by 3। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ध्यान देके देखो। अब ये एक अलग टेलीस्कोपिक बन गया और ये एक अलग टेलीस्कोपिक बन गया। क्या बोलते हो, कौन सा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड, या जो ऊपर में था वही 0 फर्स्ट सेकंड? सेकंड चलेगा। ठीक है, ये अपना अपना, राइट। बट ये सब तरीका थोड़ा सा ना धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा कि ओके कहीं पर क्वेश्चन फंसा तो उसको कैसे निकालने हैं मेरे को, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। एक क्वेश्चन और था जिस पर हम लोग बात कर रहे थे, डबल समेशन i 0 j n i इंटू j, राइट। ये एक क्वेश्चन था
सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा आपके लिए कहानी स्टार्ट हो सकता है यहाँ से। सो एनीवन फ्रॉम योर साइड? अनिल कपूर, यस, आदित्य सिंह। सर वो ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग एक चार्ट बनाते हैं सर। मैंने आई और जी के अलग अलग नंबर्स लिखे जहाँ पर आई लेस देन जे और वो कंडीशन रखी। तो सर पहला आता है 1 2 1 3 और वो n-1 से n तक आया सर, वो 1 to n तक। और फिर सेकंड आता है 2 3 हो जाएगा वो सर। तो फिर ऐसे करते करते हम लोग n-1 into n तक जा सकते हैं। तो वो समेशन ऑफ ऑल n नेचुरल नंबर्स n-1 टाइम्स होता है। तो n-1 into n+1 डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट सिग्मा हम लोग का ऐसे ओपन होगा। और फिर सेकंड सिग्मा के लिए वापस वही सेम चीज़ लिखी, लेकिन सर उसको एक्सपैंड करके रखा। तो सर फिर आया था n³ - n और हाफ बाहर ले लिया था। तो समेशन ऑफ n³ - n। तो सर वैसे आंसर आया था। तो चार्ट कौन सा बनाया था? सर चार्ट नहीं सर, मतलब ऐसे ही लिखने के लिए वो बड़ा सा मतलब पेपर पे ही लिख दिया था एक। काम था ना, मैं कुछ और समझ लिया। अरे कुछ मजे ऐसे ही कीजिए रहता है यार आजकल ऑनलाइन में। नेक्स्ट कोई और? सान्या, धर्मेल, हरिप्रिया, जेबेल, केविन, मानस, प्रतिनव, प्रत्यूष, रितेन, सृष्टि। अरे बहुत सारे लोग हैं भाई। आर्या जोशी, वशिष्ठ राजगुरु। हाँ, एनीवन? क्या सब यार चुप्पी मार दी हो, क्या बात है? चाट वाट खा रहे हो कैसे? अस्का, हाँ अस्का, कैसे तेरा कैसे नहीं आया? ये क्या तू बेईमानी कर रही है सिंपल क्वेश्चन में? ये तो सिंपल है बेटा। आओ देखिए है क्या एग्जैक्टली इसको समझते हैं। जीरो मैंने आई को रखा पहले। ये पहले तो मतलब समझे कि एग्जैक्टली क्या होता है डबल समेशन, राइट? आई को मैंने जीरो रखा, तो जैसे मैं आई को जीरो रखूंगा, आई जीरो हो गया। जीरो इंटू जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से, क्योंकि जे ग्रेटर देन है। 0 इंटू 2 करते करते 0 इंटू n, राइट? फिर मैंने आई को 1 रखा, तो उस समय फिर जे मेरा स्टार्ट होगा 2 से, राइट? फिर मैंने आई को रख दिया 2, राइट? एक टर्म कमी, राइट? आई इज इक्वल टू 3 होगा। जब 3 में रखूंगा तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू n, राइट? ये सब चला जा रहा है, मतलब मेरे पास आ रहा है क्या? 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू n, प्लस 2 इंटू 3 अप टू 2 इंटू n, प्लस 3 इंटू 4 अप टू 3 इंटू n। ऐसा चलते चलते आखिरी में जो गया होगा वो गया होगा n-1 इंटू n, ये गया होगा, राइट? ये पूरा है जिसका सम मुझे निकालना है। मतलब क्या लिखा है ये? अगर मैं 1 2 3 4 5 अप टू n तक के नंबर्स ले रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ इसमें ये पूरा जो नंबर्स मेरे को दिख रहा है, ये पूरा नंबर्स है प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, कि जितने भी इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं वो पूरे, राइट?
तो अब प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम निकलता कैसे है? तो हम लोग याद करते हैं बहुत छोटे फॉर्मूले को, कौन? ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर होता तो होता समेसन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, राइट? मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n का होल स्क्वायर, तो वो आ रहा है समेसन ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n, राइट? समेसन ऑफ r स्क्वायर जो भी है, प्लस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, राइट? इसका आंसर आप जानते हो क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर जानते हो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 एंड पूरे में डिवाइड करूंगा 2 2 2 2 आ गया प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम। ये पूरी कहानी इन शॉर्ट। फर्स्ट मेथड ये रहा, आपको समझने के लिए अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगा, बट दिस इज द फर्स्ट मेथड, राइट? पहले इसको थोड़े से कोशिश करें सोचने की, फिर सेकंड पे आते हैं। यस अमन। सर आपको कैसे पता कि सर आई और जे कंसेक्यूटिव टर्म्स है? मतलब आपने हर टाइम कंसेक्यूटिव टर्म्स लिया हुआ है? क्या है, 1 के साथ 5 भी आया है, 1 के बाद साथ 7 भी आया है, 1 के साथ n भी आया है। हाँ सर, तो हमको कैसे पता कि एन टर्म्स तक का ही सम होगा, मतलब 1 से शुरू होके? अगर वो 3 और फिर 9 और ऐसा कुछ रैंडम नंबर्स हुआ तो? रैंडम नंबर भी वहां पर है, देखो जब i की वैल्यू 3 थी और j बढ़ते हुए 9 तक पहुंचा था, तो वो भी नंबर है वहां पे। इसको रीड करना तो समझो क्या बोल रहा है। बोल रहा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, j जो है वो लेस देन इक्वल टू n है, राइट? और i इंटू जे है। तो क्या क्या पॉसिबल है इसमें? आप अगर आप सोचो तो स्कैटर वे में बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं, बट उसको अगर हम लोग सिस्टमैटिक वे में लाएं तो कौन कौन से नंबर यहाँ पड़े हुए हैं? एक नंबर पड़ा हुआ है जब i 0 होगा तो j जो है वो i से ग्रेटर है, और कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम n तक जा सकता है। तो j 1 2 3 4 अप टू n तक गया। फिर i को मैंने 1 ले लिया तो j 2 3 4 अप टू n तक गया। j i को मैंने 2 ले लिया तो j फिर 2 3 तक आगे तक गया। ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं नंबर्स। फिर फाइनल टर्म उल्टा रहेगा ना सर? समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा मैंने। नहीं सर, वो पहले n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, फिर माइनस n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, वैसे। क्यों? तो ऐसा क्यों? ये बोल के भाग गया यार चाट खाने। नहीं सर, मैं देख रहा था वापस, सॉरी। अच्छा, गॉड को बिलीव करता है? गॉड पे बिलीव करता है ना? हाँ सर, कभी कभार। ये बाहर है। बनाया तो देख, सबसे ऊपर तेरे को क्या दिए? बाल। दिमाग। अच्छा, बाल। बाल के अंदर ढका हुआ दिमाग। दिमाग देख क्या आ रहा है? आँख। देख ध्यान से सोच ले। देख क्या आ रहा है? क्या मिला आँख के नीचे? हाँ सर, क्रोनोलॉजी समझ में आ गई। कान है, उसके बाद नाक है, उसके बाद मुंह है ना बेटा। मुँह है। हाँ सर। मेंटेन कर भाई। ठीक है। ओके एवरीवन, द फर्स्ट मेथड, राइट? धर्मेल, धर्मेल, यस सर। अरे कहाँ है तू?
हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कहाँ है? सर मैं लीव होता जाता हूँ, मतलब जॉइन लीव हो रहा है। हाँ, क्यों, क्या गड़बड़ हो गया? सर मतलब अभी सबके क्लासेस होते हैं ना, तो वाईफाई बहुत स्लो चलता है। अरे अब मैं बोलता हूँ सबको क्लास कम करने को, नहीं सर। हैं? नहीं, हाँ सर। देखो ध्यान से देखना ना। कोशिश कुछ एक सिमेट्रिक सा कुछ बनाने की। राइट, तो मैं n तक की सीरीज के लिए ये पैकेट्स बना रहा हूँ, इसमें 1 से n तक की पूरी सीरीज को मैं लिख सकूँ, तो शायद समझने में हम लोगों को आसानी हो और कुछ नयापन आ सके। राइट, ये एक मैंने कुछ ऐसा बना लिया। राइट, इसको दो दो पार्ट में हम लोग वर्क करते जाएंगे। राइट, ऐसा ऐसा एक एक मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ, बट जस्ट आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। सभी में इस तरह से नंबर्स को नीचे भी जा रहे हूँ, बट मैं पूरा दिखना नहीं चाहता, इसलिए यहीं तक छोटा छोटा जा रहा हूँ। राइट, तो मैंने ये लिखा नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करते करते एन तक गया। राइट, 1 2 3 करते करते ये भी एन तक गया होगा। राइट, फिर यहाँ भी मैंने लिखा 1 2 3, ये करते करते ये भी यहाँ पर एन तक आया होगा। राइट, फिर यहाँ से 1 1 2 3 करते करते ये भी एन तक गया होगा। इसमें भी 1 2 3 अप टू n-2 n-1 एन तक गया। ये पूरा मैंने एक चार्ट बना दिया। राइट, ये पूरा एक मैंने चार्ट बना लिया। राइट, इसमें क्या है, सिस्टम क्या है, ये देखो, ये डायगोनल है, ये कुछ अपना गया हुआ है, ये डायगोनल है। मैं सिमेट्रिक नहीं बना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डायगोनल है। राइट, इसमें पूरे के पूरे जो नंबर्स है, ये डायगोनल वाले जो नंबर्स है, डायगोनल वाले नंबर्स क्या क्या ले रहे हैं, ये 2 2 दोनों यहाँ पर होगा, वो आ गया, 3 3 यहाँ पर होगा, वो आ गया। राइट, तो डायगोनल वाले नंबर ले रहे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये ले रहा है डायगोनल वाला नंबर। राइट, डायगोनल के ऊपर जो ले रहा है वो मैं बोल सकता हूँ ले रहा है क्या, 1 2 1 3, 1 के साथ पूरे n तक का मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 के साथ n तक का मतलब 3 के साथ। देखो ये जो यहाँ पर मैं सीरीज लिख रहा था, एक्चुअली यही काम यहाँ पर हो रहा है। ध्यान से देखो, एक तरफ की सीरीज ना, ऊपर हाफ, अगर केवल मैं इस तरफ जाना चाह रहा हूं तो वो, या केवल मैं इस तरफ जाना चाह रहा हूं तो वो। राइट, या तो इस तरफ की सीरीज पूरी की पूरी एक ये वाली जा रही है, या इस तरफ की जो सीरीज है वो पूरी की पूरी मेरी ऐसे जा रही है। राइट, ये क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन जो था, हाँ लिख दें अगर क्लियर है सभी लोग, हाँ लिख दें तो मेरे को आगे बढ़ने में आसान रहेगा। राइट डाउन यस।
किसी को नहीं समझ में आया वो नो भी लिख सकते हैं, डिस्कस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके नाउ, सो अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो क्वेश्चन में जो डबल समेशन था उसके मतलब को ध्यान से समझे। आई 0 जे एन, आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू 2 से n तक होनी चाहिए। पहला वाला जो ये बन रहा है वो यही बन रहा है। आई की वैल्यू जब 2 है तो जे की वैल्यू हमारे पास सेकंड डायगोनल के बाद वाला जो बन रहा है, मतलब आई एम सेइंग मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो बना है आई इजिकल टू 1 के लिए बना है, ये जो बना है आई इजिकल टू 2 के लिए बना है। स्टेप्स जो बन रहे हैं, ये जो बना है 3 के लिए बना है, ये बनेगा 4 के लिए बना होगा, राइट। करते 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 ये यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ, ये 2 ब्लॉक बना होगा, ये ऐसा ही चल रहा होगा, राइट। वेरी क्लियर, वेरी गुड। सो मतलब इसी के आंसर निकालने की मेरे को बात करी जा रही है, राइट, एक साइड का, राइट। अब ये सिचुएशन हो गया मेरे पास, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी हमने रीड कर लिया, सिस्टम क्या है ये भी मेरे पास आ गया। अब मैं थोड़ा जादू करूं यहाँ पर, एग्जैक्टली जब ये पूरा काम हो रहा है तो है क्या ये। फर्स्ट वाली सीरीज में देखो, जो फर्स्ट वाली चल रही है ये, इधर से हम लोग बात करेंगे, राइट। फर्स्ट वाले में अगर मैं 1 कॉमन ले लूं, ये है 1 + 2 + 3 अप टू n। सेकंड वाले में ये 2 कॉमन ले लूं तो वो है 1 + 2 + 3 अप टू n, राइट। थर्ड वाले में 3 कॉमन ले लिया तो ये है 1 + 2 + 3 अप टू n। ऐसे करते करते लास्ट वाले में n कॉमन ले लिया तो वो है 1 + 2 + 3 अप टू n। ध्यान से देखो, ये 1 कॉमन ये ले लिया तो 1 + 2 + ये 2 कॉमन ले लिया, ये पूरा, ये 3 इंटू ये पूरा 4 इंटू यही आ रहा है, राइट। ये पूरा अगर मैं इसमें से 1 + 2 + 3 अप टू n कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 + 2 + 3 अप टू n बचा। मतलब ये दोनों का स्क्वायर हो गया, मतलब दिस इज 1 + 2 + 3 अप टू n का स्क्वायर हो गया, राइट। इजिकल्स टू क्या है, इजिकल्स टू में पहले ही मैंने देखा कि डायगोनल वाला जो है वो तो ये आ रहा है, एंड डायगोनल के इस तरफ एंड इस तरफ जो आ रहे हैं वो यही आ रहा है जो मेरे को आंसर चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ सीधा n² + ट्वाइस ऑफ n। इज इट ओके? ये 2 मेथड हो सकते हैं इस काम को करने के, आपको जो भी अच्छा लगा हो, फर्स्ट और सेकंड वो भी लिख देना प्लीज, और नोट भी कर लें प्लीज। नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। बट हर बार मतलब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट। सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। डन।
Okay, next question please. इसका मल्टीप्लिकेशन का भी एक था और एक ऐड करने का था। ऐड करने में भी अलग कहानी बनेगी। ओके एवरीवन, नाउ ट्राई स्टार्ट विद द बेसिक्स ना। मत सोचना पिछला क्वेश्चन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब क्वेश्चन इसके अलग हो जाते हैं, सो केयरफुल। ध्रुव वेरी गुड, अभी देखता हूँ बेटा। मैं स्टार्ट करूँ क्या? सर 2
ओके, और देखिए यस सर। और देखते हैं, साथ में देखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके पहले एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। अगर मेरे को एपी का नंबर दिया है, सिंपल 1 2 3 4 का नंबर दिया है एन तक, राइट, इसका सम निकालना है। यू नो द सम कैसे निकालते हैं, बट इसी सम को निकालने के लिए मैं ऐसा लिख दूं, अगर राइट, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, टू एस इज इक्वल टू एन प्लस वन, एन प्लस वन, n plus 1 n times. So 2s is equal to n into n plus 1, s is equal to n plus 1 by 2. बड़ा सिंपल तरीका है ये तो, कि लाइक अगर मुझे सम निकालना ही है तो दोनों को रिवर्स करके ऐड कर दूं तो दिस विल वर्क, राइट। तो अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कुछ इस तरह के थॉट लगाए जाए तो क्या पॉसिबल है, राइट। ये इसी को नाम दे देता हूं एस। एक्चुअल में एस है क्या, एस यहां पर है समेशन आई 0 से स्टार्ट हुआ जे एन तक गया, आई प्लस जे। अगर मैं मान लेता हूं, एक जस्ट थॉट ले रहा हूं कि अगर मैं यहां पर एस लिखूं और समेशन ऐसा ही रहने दूं, आई जे एंड एन लिख के एन माइनस आई एन माइनस जे लिख दूं, क्या हो रहा होगा, क्या होगा ये, तो सोचते हैं इस बारे में, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो रहा होगा। एन माइनस आई, लास्ट से शुरू करता हूं। अगर मैंने एन रखा होता तो जे की वैल्यू एन हो सकती है और आई की वैल्यू एन माइनस वन हो सकती है। जे की वैल्यू एन हो सकती है क्योंकि जे इक्वल टू में है, और आई की वैल्यू एन माइनस वन हो सकती है। तो फर्स्ट टर्म अगर लास्ट से मैं शुरू कर रहा हूं तो उस समय मेरा फर्स्ट टर्म आ रहा होगा ये 0 और ये 1। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, लग रहा है कुछ। और अगर मैं 0 इस पे रख रहा हूं तो ये 0 और जे 1 आ रहा होगा, 0 प्लस 1। अरे वाह, तो काम कर रहा है यार, ठीक है। तो अब j की वैल्यू मैंने n तो रखी हुई है, i की वैल्यू उसके नीचे रख दी, तो ये आ गया 2 प्लस 0। ओके, तो ऊपर वाले में देखता हूं, i को 0 रख दिया, j को 2 रख दिया। ओके, अच्छा दोनों सेम ही आने लग गए, मतलब ये जो लिखा हुआ है मेरे पास और ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये दोनों देखने में अलग अलग लग रहे हैं, बट ये करण अर्जुन है, मतलब भाई भाई एक जैसे नहीं, जो जमींदार से बदला लेने आएंगे यही है वो दोनों। इज इट ओके? यस सर। यस सर। सब यार सांप काट दिया कैसे, सब शांति मचा दियो एकदम। सर ये जो पिंक में लिखा है वो वापस समझा सकते हैं? पिंक में जो लिखा ना, ये बोला जाता है क्लास 4th में जब गॉस थे तब उन्होंने पहली बार लिखा था ये। उनको उनके टीचर जो थे उनको लग गई भूख और वो बोले लंच टाइम में मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तो उन्होंने तो ये 1 + 2 + 3 अप टू 100 को ऐड करो, राइट। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, तो उन्होंने ऐड करने के लिए ये पूरा लिया, उसके नीचे जो दूसरे नंबर थे वो लिखा, दोनों को ऐड कर दिया और बोला कि हर एक में तो 101 आ रहा है एंड ऐसे 100 टर्म होंगे और इसका हाफ करना है, तो आंसर इज खाओ ब्रिटानिया 50-50। मतलब यहां पर जो था समेशन आर, इसे समेशन n - r कर दिया गया,
अभी आएगा। इंटरनेट थोड़ा स्लो है, मैं बोल गया पूरा, बट लिख गया पूरा, बट ये आया नहीं। जस्ट अ मिनट। ये दिख रही है अमन, आदित्य, अनुष्का, देवांश, ये Yes, दिख sir. रहा है? हाँ सर। हाँ सर। मैं बोल रहा था कि जो लिखा हुआ दोनों है वो क्या लिखा हुआ है, समेशन आर है, समेशन एन माइनस आर है। तो अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में इस बात को बोलूं तो मैं बोल रहा हूं कि ये भी एस है, दोनों एस है, दोनों को ऐड करूंगा तो 2s इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया, समेशन समेशन कैंसिल होकर समेशन एन बच गया। तो एस की वैल्यू समेशन एन जो कि एन एन प्लस वन बाई टू होती है, राइट। समेशन एन बाई, हमने एक टू, सॉरी समेशन एन है, तो मैंने कहा कि समेशन एन का मतलब यहाँ पर है एन बाहर निकल जाएगा, एन टाइम एन स्क्वायर, और ये 2s था तो 2 को निकाल दिया तो ये बाई 2 हो जाएगा। इज इट ओके? यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ सर कि मैं ये पूछ रहा इतना अच्छा थॉट बनेगा। हाँ, सर मैं पूछ रहा था कि ये वाला एस और ऊपर वाला एस सेम कैसा है, वो एक बात बता दीजिए। बोलते जाओ, वो कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम। कोई नहीं बेटा, आप बोलते जाओ, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा गड़बड़ होगा। सर मैं पूछ रहा था कि वो दोनों एस सेम कैसे आया, वो एक बार वापस। दोनों एस कैसे सेम आ रहा है? हाँ, ये तो ऐसी बात है जो हम लोग को एक बार बहुत अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो बाद आगे जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाएगी ही जाएगी, राइट। पहला वाला लिखा हुआ क्या है ये समझ में आ रहा है, हाँ सर। राइट। सेकंड वाले में जो फॉर्म बन रहा है वो समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, राइट। अब दोनों फॉर्म में अगर मैं इनिशियल कर रहा हूं तो आई और जे को पहले में फर्स्ट से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आई को 0 और जे को 1 फर्स्ट में रखना शुरू किया, आई को 0 रखा, जे को 1 2 3 4 रख रहा हूँ। सेकंड वाले में उल्टा कर रहा हूँ, जे को n रख रहा हूँ, आई को n-1 n-2 n-3 ऐसा रखता जा रहा हूँ। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम बात हो रही है? सेम। ओके सर, समझा अभी। सेम और डिफरेंस? सेम है सर। मैं दोनों, मैं बोल रहा हूँ यही उसे लिखने का दूसरा एक तरीका जो है वो हमने कुछ ऐसे रिवर्स करके लिख डाला। ऐसा क्यों किया? ये करने से फायदा क्या हुआ कि मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आई प्लस जे दोनों में से सीधा खाली हो जाएंगे, केवल मेरे पास बच। अभी मैंने सॉल्यूशन तो इसका निकाला नहीं है, जस्ट आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ऑब्वियसली समझाने जा रहा हूँ कि यही सब चीज़ें हैं जो वी कैन वर्क ऑन दैट। तो पहले यहाँ तक अगर बच जाए तो मैं आगे बढ़ूँ। तो एवरीवन, इफ ओके देन राइट डाउन यस, इफ नो राइट डाउन नो, और डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, थोड़ा नंबर लेके मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। जस्ट अ मिनट, इंटरनेट का कुछ
दिस पार्ट इज क्लियर ना? मतलब दोनों को हमें लिखने का एक ही तरीका हो सकता है, एक तरीके से हमने लिख डाला, राइट? अब एक और चीज देखते हैं, बस यहाँ तक काम हो गया तो मेरे पास अगर सीरीज दी हुई है इसमें मैं डबल समीशन यूज कर रहा हूँ, एंड नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि आई एम नॉट गिविंग आई एंड जे, मैं कुछ ऐसा आई जे आपको नहीं देना चाहता हूँ, एंड मैं समीशन को सॉल्व करवाना चाहता हूँ, फिर भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है समीशन के लिए? मैं समीशन में ना ही आई ये देना चाह रहा हूँ, केवल मैं 1 दे दे रहा हूँ, राइट? लाइक दैट्स आई एम राइटिंग, स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, आपको आसान होगा, बहुत सारी चीजें सब क्वेश्चन जीरो तीन क्वेश्चन, तीनों के आंसर क्या क्या प्लीज? कमिंग, शायद इंटरनेट थोड़ा सा, फिर आपकी आवाज अटक रही है थोड़ी। बहुत बुरा हाल बेटा, रुक जा 1 मिनट बेटा। थैंक यू विनीत। So this, I guess you are understanding this one. What I am doing, 1 starting I, J, N in this order. So put I is equal to 0. So you are getting J is equal to 1 to N. So every time you are getting 1, when starting J is equal to 1 to N. I is equal to 1, then you are starting J is equal to 2 to N. Every time you are getting 1, and so on up to I is equal to N minus 1, then J is equal to N. You are getting again 1, right? So every time you are getting the number 1, 2, 3 up to N. So add all the numbers, right? Right? But why we were talking about this, right? Our question was S is equals to summation I, J, and I plus J. So I'm writing again S is equal to summation I 0 J N minus I N minus J. Add both the numbers. What we are getting, 2S is equal to summation 2N only. I J तो cancel हो रहे हैं, and this is I J N. 2N is a constant term, so this will be common out. I J के terms नहीं है. So obviously this is 2N is common out, right? 2N is common out, and you are getting I J N. N as
1 एंड इसकी वैल्यू भी आपने निकाली। तो ये 2 को मैं कैंसिल कर, यस नाउ यू आर ये पूरा कहानी मैंने क्यों रखा था, समझाने के लिए कहानी क्यों रखा था पूरा का पूरा। अब लिख के आएगा नीचे, राइट? कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sorry, internet is very. I don't know why this is doing again and again. The first time I'm facing this type of problem. See, the next question is, if you are not able to message me here, you can message me in WhatsApp. K is equal to 1 to n 4k upon 4k to the power 4 plus. It's a beautiful arrangement of numbers, right? So how many of you have done this? कितने लोगों का हो गया ये क्वेश्चन? 1 to n. Anyone? Again, a beautiful question. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, एंड काफी अच्छा समझने का भी है। यस आदित्य सिंह हो गया, वेरी गुड। यस सर, डिनोमिनेटर को सर डिनोमिनेटर रहने दे मजनू भाई, रहने दे। हाँ, सब लोग को एक बार एक छोटा सा फॉर्मूला आपने बहुत पहले देखा होगा, उसी पर बेस है ये क्वेश्चन। तो एक सब लोग कोशिश करें, केवल और केवल जो हिंट दिया आदित्य ने बिल्कुल सही, कि ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर कुछ वर्किंग हो सकती है, राइट? इस डिनोमिनेटर में यू हैव टू वर्क, राइट? ये 4k to the power 4 plus 1 एक ऐसा स्पेशल नंबर है जो बहुत अच्छा काम कर सकता है आपके लिए। So let's try to get something. Take your time, 2-3 मिनट आपके पास है, फिर मैं बताता हूँ। Yes, sir.
Very good, very good. मैं स्टार्ट करूं? देखो, हिंट एक देता हूं, उस पर आप देखिए। उसके बाद एक हम लोगों ने वेरी गुड प्रिटेन, वेरी गुड। एक फॉर्मूला के लिए मैंने राइट, अगर ये होता तो मैं इसे लिख सकता था k टू द पावर 4 प्लस 2k स्क्वायर प्लस 1 माइनस k स्क्वायर। तो ये आता k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ये फैक्टराइज हो जाता, मतलब ये नंबर फैक्टराइज होने पर जा सकता है। एक प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर करने के बाद में हो सकता है। एक के लिए हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, गो फॉर दिस, राइट। अब खुद सोचो, कुछ प्लस माइनस करके कुछ काम का चीज बन जाए आपके लिए। विनीत, जस्ट मैंने एक छोटा सा यहाँ पर हिंट दिया है। k टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 को याद करो, बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा था। k टू द पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 था, उसे प्लस 2k स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर करके ये फैक्टराइज फॉर्म में आता है, राइट। तो ये फैक्टराइज फॉर्म में ऐसा आ सकता है, एंड देन वी हैव टू थिंक, राइट। So let's try 4k upon 4k to the power 4 plus 4k square plus 1 minus 4k square. ये समेशन है, राइट। और आई कैन रीराइट दिस एज 4k upon 2k plus 1 the whole square minus 2k the whole square. This will factorize in two parts. 4k 2k 2k square plus 2k plus 1 and 2k square minus 2k plus 1. And the मजेदार one is the last one. क्या 4k square 2 plus 1 square minus 2k plus 1 upon, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपका टेलीस्कोपिक तैयार है। नोट डाउन एवरीवन। Is it okay? Very good, Pritain. Devans, very good. बहुत अच्छे बच्चा।
ये क्लियर हुआ ना सभी को? यस सर। कितना प्यारा अरेंजमेंट है वो देखो, राइट? एवरी टाइम यू हैव लाइक टेलीस्कोपिक होगा तो कुछ ऐसे ही नंबर्स होंगे। वो प्रैक्टिस करते करते एक स्टेज आता है जहाँ पर यू विल गेट कि ओके ऐसे नंबर सॉल्व तरीका क्या होगा। एनीवन वांट टू आस्क दिस? इसके लिए कुछ पूछना चाहेंगे? आगे हो जाएगा। सर आपको व्हाट्सएप कर सकता है क्वेश्चन, मतलब क्वाड्रेटिक और सीक्वेंसेस का था, इसलिए उसमें थोड़ा डाउट आ रहा था इनसे पता। नहीं समझा मैं, फिर से पूछेंगे प्लीज? सर एक क्वेश्चन भेजूं क्या आपको, मतलब क्वाड्रेटिक और सीक्वेंसेस का मिक्स था। हाँ सर भेज दीजिए प्लीज। वेरी गुड सीता, डाउट भेज रहे थे? यस सर भेज दिया। 3 आगे छोड़ दिया है क्वेश्चन बेटा। a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस bc। क्या करूं इसका? सर आगे ए भी तो बी बता। और सी में रिलेशन निकालना था सर। सर तो फिर एक लिमिट तक तो तब से फैक्टराइज हो। आराम से ठंड ठंड। क्या क्वेश्चन हाँ पूरा पढ़ें जहाँ भी लिखा हुआ है? सर ये एक इक्वेशन दिया था और उसके आगे लिखा था फाइंड द रिलेशन इफ दिस, ये इक्वेशन है सर सेटिस्फाइबल, तो फिर हम लोग को रिलेशन निकालना है ए बी और सी और ऑप्शंस देखते। क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो पढ़ो। सर 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into ab plus bc. Find the relation between a, b and c. That's it. Yes sir, that's it. Okay, चलिए everyone try this. इसके रूट्स के बारे में कोई नहीं दिया है, रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी हैं वगैरह वगैरह? नहीं सर, सिर्फ तो 4 ऑप्शन सर ऑप्शंस दिए थे कि ए बी और सी एपी में, एचपी में, जीपी में या फिर नन ऑफ दीज थे सर, ऐसा था क्वेश्चन। तो वही। अरे कुछ तो दिया होगा, रियल रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स है, कुछ तो बोला होगा। हाँ सर रियल तो रूट्स ही बोले थे। तो बोला है भाई, जहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन वो पढ़, उसका लैंग्वेज क्या है?
हाँ सर, मतलब वही बोला था, ABC कैन बी इन और फिर AP GPHP। यार सर यही क्वेश्चन सेंड मी द लिखा है क्वेश्चन, सर। जहाँ से तू लोग को हाँ जहाँ सर, पे मैं क्वेश्चन लिखा भेजता है हूँ। बुक में ना, वो भेजो मेरे को। हाँ सर, वही भेजता हूँ मैं। तब तक आपको ये क्वेश्चन करें, m इज इक्वल टू, मजलू भाई का क्वेश्चन जब तक आ रहा है सब लोग ये देख लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर n स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल, राइट, n स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रल। इंटीग्रल पार्ट समझे ना क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ सर, भेज दिया। लेट्स सी। हाँ, पहले ये ट्राई कर लें। इसमें ये गिवन है एंड है दिस मे बी ना, होगा ही ये जरूरी नहीं है, हो सकता है, राइट। इसलिए मैं बोला कि क्वेश्चन का ये भेजो, लैंग्वेज भेजो। लैंग्वेज पर कुछ कहानी छुपी हुई रहती है, जैसे ये एक्स स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलरली एक्स स्क्वायर -2 bc प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर -2ab
Again, it's not working. Okay. Yes, Anand. सर हमारे पास 2cx तो है ही नहीं. 2cx bx और bx दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना. a माइनस बी बी माइनस सी लिया, यहाँ से जो 2cx आ रहा होगा इससे कैंसिल होगा ना बेटा. हाँ सर. इससे जो bx आ रहा होगा वो इससे कैंसिल होगा, इससे जो आ रहा होगा वो इससे कैंसिल होगा, तो वो कॉम्बिनेशन वैसा बना दिया. हाँ सर. समझे. ओके. एक अच्छा क्वेश्चन है. उसके बाद एक और क्वेश्चन था, क्या था, समेशन n is equal to 1 to 40, that is here n square by 2. अरे वाह देवांश, क्या किया बता बेटा. सर एकदम करेक्ट आइडिया तो नहीं यूज किया, पर मतलब पहले मैंने सिर्फ n स्क्वायर का ही ढूंढा नॉर्मल. फिर मैंने नहीं काम करेगा. नहीं सर, मैंने ऐसा ही किया, पर थोड़ा मतलब अलग मैथ से थोड़ा. नहीं काम करेगा बेटा, वो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, काफी बड़ा डिफरेंस आ जाएगा. हाँ सर, वही डिफरेंस फिर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10 का डिफरेंस. पता नहीं चलेगा ना, वो n स्क्वायर बाई 2 में बहुत सारे नंबर मिस हो जाएंगे. जैसे 1 के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो 1/2, राइट. 2 के लिए कर रहा हूँ तो 2 स्क्वायर बाई 2, 3 स्क्वायर बाई 2, 4 स्क्वायर बाई 2, 5 स्क्वायर बाई 2, राइट. ये जा रहा है. हाँ सर, इसमें स्क्वायर बाई 2. हाँ, इसमें ऑड टर्म मतलब जो फ्रैक्शन के टर्म सब इवन है ना, तो सब ऐड होके फिर इवन टर्म्स दे रहे हो. इवन वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब के सब जो भी है वही इंटीजर का इंटीजर ही रहेगा. हाँ. मेन मेरे को ऑड वाले ही करने हैं, राइट.
तो इवन वाला जैसे 2 स्क्वायर बाई 2 है, 4 स्क्वायर बाई 2 है, अप टू 40 स्क्वायर बाई 2 है। यहाँ से तो मैं सीधा का सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर ही हटा देता। ये सीधा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 40 स्क्वायर बाई 2 जाएगा, जिसमें से 2 स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर बाई 2, ये आराम से सॉल्व हो गया। एंड n plus 1 to n plus 1 by 6. Is it okay? राइट बचा कौन सा मेरे पास? बचा मेरे पास 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर वाला। 1 स्क्वायर बाई 2, 3 स्क्वायर बाई 2, 5 स्क्वायर बाई 2 अप टू 39 स्क्वायर बाई 2। एग्जैक्टली ये मेरे को चाहिए। राइट 0 9 4 25 12 7 स्क्वायर 49, मतलब 24 ऐसे ही जा रहा है। राइट 4 का 8 का 12 का ये डिफरेंस ही पता चल रहा है इसमें तो। ये बन गया बेटा सीक्वेंस। Is it okay? Difference are in AP. ना ठीक है। परफेक्ट आ जाएगा, परफेक्ट मैच कर जाएगा। राइट वेरी गुड, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे यार, मजा आ गया मेरे को तो। आई डोंट नो आप लोग को या नहीं आया। आई एंजॉय लॉट।